चलिए स्टार्ट करते हैं, काफ़ी लोग हो गए हैं। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, hope you all are fine and staying healthy. My name is Usman Abdullah and I am the president of Microsoft Student Ambassador Club PUCIT, and I warmly welcome you all to this to the second day of getting started with computer vision using CV. So we have NERST ACM student chapter as an outreach partner for this event, and the day two speaker we have is Saif Rahman. He's a beta MLSA at Microsoft. He's the general secretary at Nest ACM. Also, he's marketing co-lead at Microsoft Student Ambassador Club Islamabad. And currently, he's working as a data scientist at Kajabi. So, welcome, Safir Rahman, and over to you. Assalamu alaikum everybody. Hope you're all doing good. So as Usman just introduced me to all of you, so I'm actually a Microsoft Student Ambassador and actually a beta Microsoft Student Ambassador and working as a data scientist at Kajabi right now. So coming on to our workshop for today. So actually basically हम जो workshop कर रहे हैं हमारा एक basically हमारा mission ये था कि हम इसको for the sake of computer vision, like as you know कि computer vision आजकल बहुत boom है in the industry and there are a lot of applications in the computer vision. So we are trying to cover as much as possible for all of you guys to start as a beginner and to learn something new for your benefit. So computer vision में basically आप लोगों ने कल अगर देखा होगा तो आप लोगों को इरशाद ने इसको आया था like introduction to computer vision, and he himself gave you some little basics of OpenCV as well. So OpenCV जो हम basically use करते हैं computer vision में actually OpenCV काफ़ी अच्छी library है जो बनाई गई थी just कि हमने जो computer vision के mostly functions करने होते हैं उनको हम as fast as possible किया जा सके. जैसे आपने further libraries की होंगी, कभी TensorFlow ट्राई की हो या PyTorch ट्राई की हो तो वो deep learning के लिए काफ़ी helpful है. तो same is the case with the OpenCV. And let's start for the today's session. हम आज के सेशन के लिए स्टार्ट करते हैं. So just let me share my screen. Sure. Okay, is my screen visible? Yep. All right, let me just. All right. Okay, आपको for now मैं एक दफ़ा आप लोगों को अगर introduction दे दूँ for the sorry आपको एक recap दे दूँ कल को सेशन का ताकि हम एक दफ़ा familiar हो जाएं and सारे same page पे आ जाएं. तो basically हम computer vision के लिए जो हमने workshop के लिए ये OpenCV है. तो OpenCV को हम जो first of all मैं आपको एक थोड़ा सा like touch दे दूँ कि हमने image को कैसे read करना है और अगर image को resize और crop करना हो तो हम मोस्टली क्या चीज़ें और किस तरह से उसको एक करते हैं ताकि हम एक रिकैप हो जाए फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी विल स्टार्ट विद आवर प्रोजेक्ट्स फॉर टुडे. So first of all, like you know, we import OpenCV, which is like import CV2, and then for reading an image we actually call सफी काइंडली थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को जूम कर लें ताकि हम थोड़ा सा. Sure. Thank you so much. Is it good? Yep. Okay. So image को read करने के लिए हम मोस्टली जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो OpenCV का फंक्शन है image.read फंक्शन. लाइक इस मेथड को यूज़ करते हैं. इसमें हमने सिंपल इमेज का पाथ देना होता है जो कि फॉर इन आवर केस हमारी इमेज जो है सेम फोल्डर में ही पड़ी हुई हैं. लाइक अभी फॉर नाउ मैं आप लोगों को सिर्फ कल वाली एक इमेज के ऊपर रिकैप दूंगा जो कि हमने कल कैट की इमेज पे किया था. तो ये सेम इसी पाथ पे पड़ी हुई है जिस पाथ में हमारा पाइथन की फाइल है. तो हमें एज सच इसको प्रॉपर करना नहीं पड़ेगा. वी जस्ट हैव टू enter the name and that's it. And for showing the image we just have to write this function cv2.imshow, which is like image show. And आप इसके फर्स्ट पैरामीटर में आपने लाइक आपको जो भी फ्रेम शो होता है आपके विंडो पे आप उसका नेम रख सकते हैं. फॉर लाइक हम यहाँ पर रख देंगे cat showing और cat picture.
एंड देन आपने इमेज पास करनी है जो कि हमने मिस कर दी यहाँ पे। एक्चुअली इसको हम इस तरह से करते हैं, लाइक आपने जो भी इमेज रीड की है विच इज़ इन आवर केस कैट, एंड उसको इम रीड के साथ हमने फर करके हमने इमेज फंक्शन के अंदर स्टोर करवाना है। एंड देन हमने ये जो इमेज स्टोर करवाई है इसको हम इधर सिंपल एज इट कॉल कर देंगे, एंड देन विल गो विद cvt2 डॉट वेट की। ओके, अच्छा, वेट की एक्चुअली जो हम यूज़ करते हैं इसको अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं फॉर नाउ, अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर जूम स्क्रीन थोड़ी सी और जूम कर लें। श्योर श्योर, मैं भी सेंड करता हूँ। इज इट गुड? आप मुझे काइंडली बता देगा जिस पे यस सर, फाइन, थैंक यू। ओके फाइन, ऑलराइट। अगर आपको मैं अब ये इमेज शो करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको ऐसे करूँ एंड जस्ट रन इट, और आपको लाइक ये देखा होगा आपने कि इमेज आई है हमारे पास, लेकिन ऐसे शो नहीं हुए हमें। सिर्फ हम ओपन करेंगे इमेज और उसी वक्त ये एक, सॉरी, ओके, तो ये आप इमेज देखिए आपने एंड इट इज़ हियर फॉर नाउ। अगर मैं इसको देखो या आपने देखा तो इमेज उसी वक्त ही हमारी डिसअपियर हो गई है। लेकिन अगर आप इमेज डॉट वेट की में आप इफ कोई पैरामीटर पास करते हैं लाइक फॉर दिस सर्टेन नंबर ऑफ सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स, हमारी इमेज जो सी है वो शो हो एंड देन डिसअपियर, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 1 पास किया है इसमें, तो इमेज जस्ट फॉर 1 सेकेंड यू कैन से, और फॉर 1 मिली सेकेंड हमारी इमेज शो होती है एंड देन इट जस्ट डिसअपियर्स। राइट, देखिए मैं बार बार रन कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर 0 कर दूँ तो हमारी इन्फिनाइट टाइम हो जाता है इमेज का। एक्चुअली में हमारी इमेज शो होगी लेकिन ऐसा हमें कोई उसका वो इशू नहीं होगा, वो सिर्फ जब तक हम उसको कहेंगे नहीं तब तक वो डिसअपियर नहीं होगी। तो ये एक्चुअली हमारा इमेज रीड का फंक्शन था। अगर आप इसको हम फर्दर चेक करें तो हमने इमेज रीसाइज या इमेज क्रॉप कैसे करनी है, हम उसको एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं। अगर आपने देखा कि हमने इमेज जो अभी कॉल की, हम इसको इमेज को एक, अगर हम इसको चेक करें इमेज को, हम शेप इसकी प्रिंट करें ताकि हमें इमेज का आइडिया हो जाए कि इमेज के क्या पैरामीटर्स हैं पिक्सेल्स में। तो आप इसको देखें तो हमें ये आउटपुट आ रही है। लाइक इसमें क्या हमारा 427 हमारी विड्थ है, 640 हमारी हाइट है, एंड वी हैव 3 चैनल्स। 3 चैनल्स मतलब कि हमारी इमेज जो सी है वो RGB स्केल के अंदर है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो हमें इसको ये शो करवा रहे हैं। अब अगर इसकी बेस पे मैंने इसको अब रीसाइज करना है तो आप इसको देख सकते हैं कि लाइक मैं अगर कॉल करूं, अब इमेज को रीसाइज करने का फंक्शन है हमारा cv2 डॉट रीसाइज, एंड इसके अंदर हमने सबसे पहले अपनी इमेज पास करनी होती है जो कि इस वक्त ऑटो कंप्लीट हो गया, सॉरी। ओके, इमेज, एंड देन हमने अब इसके अंदर देनी है कि आपने इमेज का साइज़ क्या रखना है। फॉर नाउ अगर मैं आपको लाइक जस्ट कॉल इट 400, दैट्स इट, एंड देन मैं यहाँ पर रीसाइज्ड इमेज, इसको हम रीसाइज इमेज के नेम पे स्टोर कर देते हैं, एंड इधर मैं रीसाइज इमेज कॉल कर दूंगा। तो अगर अब आप देखते हैं तो मैं अब हम इमेज चेक करें, सॉरी, ओके, हमारी इमेज जो सी है अब ये रीसाइज हो गई है। लाइक हमने इसको 400 बाय 400 एक परफेक्ट स्क्वायर के एंगल पे हमने इसको व्यू किया है। अगर अब देखते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें, लाइक मैं इसकी विड्थ को चेंज करके हम दोबारा इसको रन करते हैं, देखें इसकी विड्थ और हमने श्रिंक कर दी है और ये 250 बाय 400 पिक्सल्स की हो गई है। सेम अगर आप इमेज को इनलार्ज भी करना चाहें तो हम वो भी यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 1000 बाय 1000 का देते हैं तो ये श्रिंक होने की बजाय ये एनलार्ज हो जाएगी। नो डाउट क्वालिटी जो सी हमारे इमेज की वो तो डिक्रीज होगी, लेकिन हमने इसको एनलार्ज जरूर कर दिया, लाइक पिक्सल्स हमने इसके इंक्रीज कर दिए। लेकिन इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे वाइट बॉर्डर आ गया है। आपकी इमेज का एक मैक्सिमम साइज़ भी होता है जिसकी जहाँ तक वो एनलार्ज हो सकती है। तो इन आवर केस हमारी इमेज जो सी थी ये फुल एनलार्ज नहीं हुई है, ये अराउंड 700 आई गेस गई है या 600, और उसके बाद ये नहीं हुई। तो इस तरह हम फर्दर भी हम इमेजेस को देख सकते हैं कि हमने इसको एनलार्ज करना हो, इसको कम करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं। और सेम अगर मैं आपको यहाँ पे हम जो हमने एनलार्ज इमेज की है इसके अगर मैं आपको रिसाइज करके इसका देखें कि इसकी शेप क्या हुई है अब,
तो resize image dot shape देखते हैं। तो ओके अच्छा ठीक है, हम इसको भी ऐसे रखते हैं एंड here you go। लाइक पहले हमारी इमेज जो ओरिजिनल साइज थी 427/640 थी एंड जब हमने उसको एनलार्ज किया तो 1000/1000 पिक्सल्स की हो गई है। ओके नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमने इमेज को क्रॉप कैसे करना है। अगर हमने इमेज को क्रॉप करना है, इसके लिए हमारे पास है कि हमने जो हमारी रियल इमेज है उसको हम पास करते हैं पैरामीटर स्लाइसिंग के लिए। लाइक हमने देनी है कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, लाइक किस पिक्सल से किस पिक्सल्स में आप रखना चाहते हैं। फॉर नाउ आपने अगर देखा हो, एक सेकंड अगर मैं आपको दोबारा यहाँ पे इमेज शो करके दिखाऊँ, सेकेंड इसको हम कर देते हैं, लेट्स रन इट अगेन। ओके जो एक्चुअली हमारा कंप्यूटर विजन में जो इमेजेस होती हैं ना, वो हमारी जो शो होती हैं कि पिक्सल्स रेंज हमारी कैसे होती है। लाइक जो हमारा लेफ्ट टॉप कॉर्नर होता है ना, यहाँ पे हमारा 0/0 पिक्सल होता है एंड अगर आप यहाँ से राइट मूव करते हैं तो हमारे विड्थ के पिक्सल्स इंक्रीज होते हैं एंड जब आप नीचे को मूव करते हैं तो हमारे जो पिक्सल्स हैं हाइट के वो इंक्रीज होते हैं। एंड डायगोनली जो सा होता है हमारी विड्थ एंड हाइट का, ये जो बॉटम राइट कॉर्नर होता है ये हमारे मैक्सिमम पिक्सल्स होते हैं, जो कि इन आवर केस हमारी इमेज के वो 427/640 ये वाला जो पॉइंट है। अगर आप टॉप लेफ्ट के साथ से स्टार्ट होते हैं तो हमारा जो बॉटम राइट है ये एक्चुअली 427 एंड 640 पिक्सल्स फ्रॉम द टॉप लेफ्ट डिस्प्लेस्ड है। तो ये हमें इसका आइडिया देता है। अगर हमने इसको अब इमेज को स्लाइस करके क्रॉप करना हो तो इमेज स्लाइसिंग का फंक्शन यूज़ होता है, जो कि एक्चुअली हमारी रियल इमेज को आपने कितना स्लाइस करना है, लाइक आपने किधर से किधर तक कितना क्रॉप करना है, लाइक आपको फुल इमेज के अंदर से कितना पार्ट चाहिए। तो इन आवर केस अगर हम इसको लाइक करते हैं तो हम देते हैं फ्रॉम फॉर एग्जांपल 150 टू 300 देते हैं हाइट का एंड देन हम इनको देते हैं विड्थ का जस्ट टू से कि लाइक 200 टिल 300 देते हैं, दैट्स फाइन। एंड इसको हम स्टोर कर देते हैं क्रॉप्ड इमेज के साथ, here we go एंड इधर हम क्रॉप्ड इमेज प्रिंट करवाते हैं। अगर आप क्रॉप्ड इमेज को देखेंगे तो हमारे पास एज सच लाइक हमारी इमेज नहीं आई है। इसको एक्चुअली लाइक जो हमने क्रॉप किया है पार्ट वो बहुत ही कोई राइट साइड वाला क्रॉप हुआ था, तो हम इसको एक दफ़ा दोबारा करके ट्राई करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, हम इमेज ओरिजिनल ले रहे हैं, यस बिल्कुल ठीक है। हम ओरिजिनल इमेज को लेके हम 150 की बजाय वी जस्ट गो फॉर 50 एंड 350 की इंस्टेड वी जस्ट गो फॉर 200 let's say, and then for here we just go for 100 and 170 let's say। and now अगर अब हम ट्राई करते हैं, सॉरी right now ओके क्रॉप्ड इमेज को अगर अब हम शो करें तो हमारे पास अब इमेज जो आ रही है मोस्टली अभी भी हमारे पास वही पैटर्न आ रहा है। इसको हम चेंज करते हैं दोबारा, लेट्स ट्राई अगेन, जस्ट गो फॉर 70 एंड मैक्सिमम का 400 जा सकती है, यस इसको हम कर देते हैं, इसको हम 400 करते हैं, लेट्स ट्राई। ओके अब हम इमेज देखते हैं तो देखिए अब हमारे पास जो इमेज का टॉप लेफ्ट था एरिया हमने वो क्रॉप करके शो किया है। तो लाइक इस तरह से हम इमेज क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, लाइक हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारा आज का जो मेन सेशन का पार्ट है। लाइक अगर हमने रिकैप कर लिया है तो अब हम मूव करते हैं लाइक हमारा जो मेन पार्ट है आज का कि जो हमारा प्रोजेक्ट का। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्चुअली 2 प्रोजेक्ट्स वैसे तो हमने सोचे हुए हैं, लेकिन अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम तो ही दूसरा प्रोजेक्ट करेंगे हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट का। लेकिन दोनों ही बहुत इजी और छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि हमने जब लाइब्रेरी यूज़ करनी होती है मोस्टली तो हमने सिर्फ मेथड्स कॉल करनी होती है अपने इमेजेस के ऊपर, जो उनको लाइक फॉर्मेट करके और हमने जो भी हमें कॉल चाहिए हम वो कर लेते हैं। तो फॉर नाउ लाइक हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना OCR का फंक्शन। तो एक्चुअली OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। OCR ये होता है कि हमारा कोई भी हम फोटो देते हैं ना, जैसे अगर आपको मैं दिखाऊं लाइक दिस इमेज,
ओके, जैसे अब ये इमेज है हमारी, अगर ये हमने दिखानी हो फॉर के लाइक इसमें क्या क्या लिखा हुआ है इमेज के अंदर, ये हमें तो पता चल रहा है कि लाइक एक्सप्लेन दैट स्टफ एंड 0 to लेके 1 2 3 9 से लेके हमारी डिजिट्स लिखे हुए हैं, लेकिन हमने कंप्यूटर को बताने के लिए एक्चुअली ये क्या कौन से लेटर्स या डिजिट्स लिखे हुए हैं एंड इनको प्रिंट करना है, डिटेक्ट करना है कि लाइक ये वेदर दी एक्सप्लेन में जो ई है वो ई ही है या क्या है। तो एक्चुअली ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन ये हमारी एप्लीकेशन होती है कि लाइक आपने इमेजेस के अंदर से अपने कैरेक्टर्स को रीड करना है और बाद में उनको अपने जो भी करवाना है, प्रिंट करवाना है, सेव करवाना है, दैट्स अप टू लाइक हमारा प्रॉब्लम जो है हमारी वो क्या है। फॉर नाउ हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन पे कर रहे हैं कि लाइक हमारा हमने सिर्फ इसको कहना है कि लाइक रीड दीज कैरेक्टर्स एंड लेट अस नो कि ये कैरेक्टर्स एक्चुअली में क्या है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के लिए जो हम मोस्टली लाइब्रेरी यूज़ करते हैं ओपन सीवी के साथ, एक लाइब्रेरी है पाईटेस्ट डायरेक्ट। पाईटेस्ट डायरेक्ट अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं की हुई फॉर नाउ तो आप लोग अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलें इफ़ यू आर ऑन विंडोज़, और अगर आप लोग मैक पे या उबंटू पे हैं तो आप टर्मिनल खोल के कमांड रन करें। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को कमांड रन करूँ जो कि है पिप इंस्टॉल पाईटेस्ट, ये कमांड अगर आप लोग रन करें तो आपके पास पाईटेस्ट डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। एक्चुअली पाईटेस्ट डायरेक्ट क्या है? पाईटेस्ट डायरेक्ट इज द लाइब्रेरी जो कि एक्चुअली ओसीआर के फंक्शंस परफॉर्म करती है आपके इमेजेस पे, जो कि इमेजेस को लाइक हमने ओपन सीवी यूज़ करनी है। यहाँ पे ओपन सीवी हमारी यूज़ होती है फॉर लाइक रीडिंग एंड राइटिंग द इमेजेस, जो भी हमने इमेजेस को शो करना हो, इमेजेस को इंपोर्ट करना हो, इस काम के लिए जो पाईटेस्ट डायरेक्ट है ये एक्चुअली इमेजेस के ऊपर एक्ट करती है। इमेजेस होगी या वीडियोस होगी उनके ऊपर एक्ट करती है और ये एक्चुअली उनके ऊपर डिटेक्ट करती है कि लाइक अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो क्या लिखा हुआ है, और वेदर वो लाइक अल्फ़ाबेट्स हैं, डिजिट्स हैं, लेटर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो उनको डिटेक्ट करती है। तो हम नाउ हम लाइक पाईटेस्ट यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास और भी काफ़ी लाइब्रेरीज हैं जो कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के लिए यूज़ होती हैं, जैसे एक सिंपल टेस्ट है, ये भी यूज़ होती है और मोस्टली, लेकिन जो ज़्यादा अच्छी यूज़ होती है और जो ज़्यादा स्टेबल ऑप्टिमाइज्ड है वो पाईटेस्ट लाइब्रेरी है। तो फॉर आवर प्रोजेक्ट हम पाईटेस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इफ़ यू हैवन इंस्टॉल्ड इट तो आप लोग पिप इंस्टॉल पाईटेस्ट के थ्रू आप लोग ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं एंड लेट मी नो अगर किसी को कोई इशू आ रहा है इंस्टॉलेशन में तो हम वो सॉल्व कर लें। फॉर नाउ इसको मैं यहाँ पे कर देते हैं हम कमेंट। ओके, उसके बाद फिर हमने इंपोर्ट करना है पाईटेस्ट डायरेक्ट को। ओके, पाईटेस्ट सर डायरेक्ट, जी जी, सर ओसीआर का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ओके, थैंक यू। ऑप्टिकल मतलब कि आप कंप्यूटर के ऊपर देख रहे हैं एंड कैरेक्टर एंड देन रिकग्निशन। ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ओके, अब पाईटेस्ट के ऊपर हमने सबसे पहले वही लाइक वी हैव टू जस्ट इंपोर्ट आवर इमेज, जो भी हैं जिस इमेज पे हमने काम करना है। फॉर इन आवर केस हम अपने इमेज को इंपोर्ट करते हैं एंड विच इज cvt2.imrate एंड हमारी इमेज है image.png आई गेस if I'm not wrong। अच्छा, हमारे पास 3-4 इमेजेस हैं लेकिन हम चलो image.png पे फिलहाल फॉर नाउ करते हैं। ओके, इमेज के नाम से हम इनको करके हम एक दफ़ा कंफर्म करने के लिए हमारी इमेज रीड हो रही है या नहीं हो रही। ओके, ऑलराइट, ओके, इमेज हमारी रीड हो रही है। ऑलराइट, लाइक हमारा कोई एरर नहीं है, दैट्स गुड। ऑलराइट, हम कैरी ऑन करते हैं फॉरवर्ड, आगे चलते हैं आगे। ओके, सो नेक्स्ट, अब जब भी हम इमेजेस रीड करते हैं ना, हमने उनके ऊपर कोई भी लाइक इफेक्ट्स लगाने हो या कोई भी फर्दर हमने प्रोसेसिंग करनी हो तो हम मोस्टली इमेजेस को कन्वर्ट करते हैं ग्रे स्केल के अंदर, या फिर जो हमारी कंपैटिबल लाइब्रेरी जिसके थ्रू हमने काम करना है, जिसके जो कि हमारे केस में पाईटेस्ट है, तो हम उसके सपोर्टेड कैरेक्टर उसके सपोर्टेड कलर में जाते हैं। और जैसे कि हमारा जो हम लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, पाईटेस्ट कर रहे हैं यूज़ फॉर ओसीआर, तो जो पाईटेस्ट है ये इमेजेस के कलर्स लेती है इन द फॉर्म ऑफ RGB विच इज़ के रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जबकि हमारा जो ओपन सीवी है ये हमारा फंक्शन करती है इन द फॉर्म ऑफ BGR विच इज़ ब्लू, ग्रीन एंड रेड। और इसके बेस पे हमारे इमेजेस फंक्शन करती हैं। लाइक इन केस अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे दोबारा कैट करके, सॉरी, JPG, एंड इसके ऊपर अगर मैं cvt2.imrate
CVT कलर एंड देन हमारी इमेज, इसके ऊपर हमें कलर लगाना है CVT2 डॉट कलर। ओके, कलर हम यहाँ पे अगर करते हैं BG और सॉरी BGR2 RGB, इसको मैं थोड़ा इमेज कॉल कर देता हूँ जस्ट फॉर नाउ। अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन हमारे जो कलर्स हैं वो इन्वर्ट हो जाएंगे। अगर मैं आपको इमेजेस हमारी अच्छा गई, ये हमारी इमेज, ये देखें। पहले हमने जो ओपन सीवी के थ्रू हमने इमेज रीड की थी, तो ओपन सीवी हमारी एज इट इज़ उसी तरह से ही इमेज रीड कर रही थी जो वो एक्चुअली थी, लेकिन वो उसके कलर्स को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रही थी, जो कि BGR में कर रही थी, ब्लू ग्रीन एंड रेड में। जो हमारा फर्स्ट चैनल होता है कलर्स का, वो ओपन सीवी एज अ ब्लू लेती है, सेकेंड ग्रीन लेती है एंड थर्ड एज अ रेड लेती है। लेकिन अब पाई टेस्ट को हमने जब भी यूज़ करना था वो RGB में लेती है। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने जब RGB में कन्वर्ट किया अपने इमेज को पाई टेस्ट की वर्किंग के लिए, तो अब उसने हमारे ब्लू को रेड के साथ रिप्लेस कर दिया, जो कि जिसने ब्लू की वर्किंग करनी होती है, एंड रेड वाले को ब्लू के साथ कंपेयर कर रिप्लेस कर दिया, जिसमें हमारे इमेज का आप देख रहे हैं कि लाइक टोटली कलर स्कीम फुल डिफरेंट हो गया है। लेकिन जब हमने OCR के ऊपर काम करना होता है तो हमारा मोस्टली हम इसी की बेस पे काम करते हैं, क्योंकि वो आपके करेक्टर्स की जो सिग्निफिकेंस होती है वो उसको एक अच्छी तरह से, लाइक आप डायलेशन अगर आपने नहीं की हुई तो एक डायलेशन होती है जिसमें हमारे करेक्टर्स अच्छी तरह से एक शो होते हैं। तो फॉर नाउ हम लाइक अपनी जो भी इमेज है उसको हम BGR से RGB में करेंगे, क्योंकि हमारा पाईटेस्ट जो है वो RGB कलर के अंदर इमेजेस को सपोर्ट करता है। ओके, यहाँ पे हम दोबारा इमेज एक दफ़ा चेंज करें PNG फॉर नाउ। लेकिन हमारी इमेज पे अगर आप देखें तो ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी इमेज पहले ही ग्रे ब्लैक एंड वाइट कलर में थी, तो इसको कोई इशू नहीं होगा इस केस के अंदर कि हमने उसकी कलर स्कीम को चेंज किया कि नहीं किया। ओके, कंटिन्यू करते हैं हम आगे। तो आगे हम चलें तो अब मैं इसके ऊपर अगर सिंपल आपको एक पाईटेस्ट का फंक्शन लगा कर दिखाऊँ जिसमें आप लाइक पाईटेस्ट रीड करें कि हमारे इमेजेस पे लिखा क्या है। तो अब पाईटेस्ट के डिफरेंट फंक्शंस हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, लाइक इमेज टू स्ट्रिंग है, इमेज टू बॉक्सेस है। इसमें काफ़ी इसके मेथड्स हैं जिनको हम इमेज के ऊपर कॉल करें तो हमारा जो पाईटेस्ट है वो हमारे इमेजेस के ऊपर जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं उनको रीड कर सकता है, विच इज़ लाइक टू सिंपल। अगर हम इसके ऊपर सिंपल कॉल करें इमेज टू स्ट्रिंग और हम इसको पास कर दें अपनी इमेज एंड दैट्स इट। इसको एक सेकंड अगर हम स्टोर नहीं, इसको हम प्रिंट करवाते हैं। ओके, अगर आपको मैं ये दिखाऊं अब तो आप देख सकते हैं कि लाइक टर्मिनल में नीचे जो जो हमारी फ़ोटो पे लाइक इमेज पे लिखा हुआ है वो एज इट इज़ OCR उसको रीड कर रहा है और वो प्रिंट कर रहा है, लाइक एक्सप्लेन देन दैट एंड स्टफ एंड देन हमारी रीडिंग। ओके, आई डोंट नो इसने 6 को 4 क्यों ले लिया है, लेकिन ये लग तो हमें तो सही अच्छा खासा 6 लग रहा है, लेकिन ये एरर्स, अच्छा ये जो इस तरह के एरर्स होते हैं ना, एक्चुअली ये क्योंकि हमने सिंपल OCR की एप्लीकेशन कर रहे हैं, हम इसके ऊपर एस कस्टम मेड मॉडल नहीं लगा रहे। कोई भी डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग मॉडल अगर आप लगाते हैं ना कंप्यूटर विजन का, CNNs का, तो उससे ये होता है कि हमारी जो इमेज की एक्यूरेसी है ना OCR डिटेक्शन की, वो बहुत अच्छी एनहेंस और इंक्रीज हो जाती है। फॉर नाउ जैसे आप देखते हैं कि हमने एक सिंपल टेस्ट का फंक्शन लगाया इमेज टू स्ट्रिंग, उसने इमेज को हमारे रीड किया, उसने जो जो करेक्टर्स थे उसके ऊपर उनको प्रिंट करवा दिया। अब इसमें उसने देखें 5 के बाद 6 आता है हमारे इमेज के अंदर, लेकिन हमें तो पता है कि वो 6 है क्योंकि ह्यूमंस आर ट्रेन्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द नंबर्स, और काफ़ी अच्छी तरह से हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लेकिन मशीन्स हैं, मशीन्स को जो भी करेक्टर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगती है वो उसको शो कर देती हैं। तो इन आर केस पाईटेस्ट जो लाइक इतना अच्छा ट्रेंड नहीं है OCR को करने के लिए, लेकिन उसने यहाँ पे 6 की जगह पे 4 प्रिंट किया हुआ है, जो कि एक सिंपल एरर आप देख सकते हैं जो कि हमारी एप्लीकेशंस को काफ़ी आगे डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए अगर हम, जो कि आउट ऑफ स्कोप फॉर प्रोजेक्ट है फॉर नाउ, लेकिन अगर हमने करना हो तो हम इनके लिए कस्टम मेड हमारे CNNs के मॉडल्स होते हैं डीप लर्निंग के, जो हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, जो कि हम CV2 के साथ इनका लेबरेट करके हम पाईटेस्ट को देते हैं ताकि हमारी एप्लीकेशन की एक्यूरेसी जो है काफ़ी अच्छी इनहेंस हो। ओके, अगर आपने ये देखा कि इमेज टू स्ट्रिंग थे, अगर हम इसको फर्दर करके ट्राई करें, अच्छा हम इनको इमेज टू बॉक्सेस के हिसाब से करते हैं, लाइक आपको मैं उसका भी आइडिया देता हूँ कि वो क्या करता है। पाईटेस्ट इमेज टू बॉक्सेस,
अब देखें आप, हमारी सेम वही इमेज उस तरह से शो हो रही है, लेकिन इस दफ़ा क्या हो रहा है कि इसने हमारे हर कैरेक्टर को अलग अलग से प्रिंट किया है और उसकी रीडिंग्स हमें बता रहे हैं कि लाइक एक्चुअली ये इमेज के पिक्सेल्स के अंदर इसका कहाँ पर इसकी डेस्टिनेशन है। फॉर नाउ आप देखें वही सेम हमारा स्टफ है, एक्सप्लेन दैट स्टफ, एंड वो नंबर्स प्रिंट हुए हुए हैं, लेकिन वो साथ में हमें दे रहा है कि लाइक जो ई है वो एक्स एंड वाई पे इस जगह पे पिक्सल में, एंड विड्थ एंड हाइट में उसकी ये पिक्सेल्स हैं। और अब यहाँ पे जाके अगर आपको करेक्टर को स्पेसिफिक करेक्टर को हिट करना है तो आप इन पिक्सेल्स पे जाके आप उसको हिट कर सकते हैं। और जीरोज आर नथिंग, ये जस्ट हमारा एक एक्स्ट्रा कॉलम होता है जिसको लाइक वी जस्ट इग्नोर इट। हमारा सिंपल ये है कि हमारा करेक्टर क्या लिखा हुआ है एंड उसकी प्लेसिंग क्या है हमारे इमेज के ऊपर। इसी तरह अगर हम ए को देखते हैं तो ए इज एट 136, एक्स एंड 146 ऑफ वाई, एंड विड्थ एंड हाइट अकॉर्डिंग टू इसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हम देखते हैं तो 176 एंड 173 है इसकी बेस पे। ओके, अगर हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट, तो अच्छा अब हम को लेकर चलते हैं। ओके, हम इसके ऊपर अब बॉक्सेस बनाते हैं फॉर लाइक अब हमने एक्चुअली इमेज के ऊपर शो करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। ओके, अच्छा इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं, हमने अपने इमेज की जो हाइट है उसको स्टोर करते हैं एंड उसकी विड्थ को स्टोर करते हैं, एंड देन ओके हमें तीसरा कॉलम फॉर नाउ हमें चाहिए नहीं है, इमेज डॉट शेप। ओके, इमेज डॉट शेप में आपको मैंने पहले दिखाया कि हमारा जो शेप है वो हमें तीन टुपल्स रिटर्न करती है, जिसमें हमारा फर्स्ट होता है हाइट होती है इमेज की, सेकंड विड्थ होती है, एंड थर्ड हमारा चैनल होता है। चैनल की चैनल ऑफ आर इमेज जो कि 3 स्केल चैनल है, लाइक BGR और RGB जिस कलर में ले लें, तो हमें चैनल्स की एज सच OCR की एप्लीकेशन के अंदर चैनल्स की हमें एज सच ज़रूरत नहीं है, तो हम चैनल्स को फर्दर इतना नहीं करेंगे, इसलिए हमने वी जस्ट लीव इट ब्लैंक एंड हम कंटिन्यू करते हैं आगे। और अगर मैं यहाँ पे अगर आपको सेम यही करके दिखाऊं, ओके अच्छा हमने देखा कि हमारा जो इमेज टू बॉक्सेस है हमें एरे रिटर्न कर रहा है, तो हम उस एरे को एक लिस्ट को हम एक अपने स्टोर कर लेते हैं अपने एक वेरिएबल में, ताकि हम उसको फर्दर आगे जाके यूज़ कर सकें। उसकी यूजेज आपको मैं अभी बताता हूँ लाइक हम उसको किस तरह से यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पे उसको फॉर लूप लगा के फॉर लाइक बी इन बॉक्सेस, okay, and dot split lines, if you just do this, and अगर मैं एक सेकंड चेक करने के लाइक हमारा कोई एरर तो नहीं आ रहा, तो if you just do this, ओके ठीक है, हमारा इमेज भी हमें हमारी शो हो रही है बिल्कुल, और सेम हमारे पास वही एज इट इज़ वही लिस्ट उसी तरह से आ रही है। ओके दैट्स ग्रेट, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, अच्छा इसको फॉर नाउ वी जस्ट कमेंट इट, एंड अगर आपको मैं दिखाऊं b इक्वल्स टू b डॉट स्प्लिट एंड देन दिस, और सेम मैं दोबारा b प्रिंट करता हूं ताकि हमारा एक थोड़ा सा विजुअलाइज तरीके से हमारे जो एरे ऑफ हैं वो हमारे प्रिंट हो। ओके अच्छा सॉरी, हाँ हमारे जो हमारा इमेज टू स्ट्रिंग रिटर्न करता है ना, एक्चुअली सॉरी इमेज टू बॉक्सेस, वो हमें रिटर्न करता है स्ट्रिंग के अंदर, तो ये हमारा काफ़ी इशू होता है इसके अंदर। इसको अगर हमने करना है फॉर लाइक हमने इसको ठीक करना हो तो वी जस्ट डू इट लाइक ओके राइट स्प्लिट लाइंस, एंड हमने यहाँ पे भी तो पहले एक गलती की है ओके अगर आपको मैं अब शो कर रहा हूँ तो अब ये देखें, अब हमारी लिस्ट अगर आप देखते हैं तो अब उसने उसको एक्चुअली स्लाइस किया हुआ है हर स्पेस के अकॉर्डिंगली, उनकी हम एक एरेस को सिंपल एक कॉलम्स में उसे डिफाइन करके वो हमें शो कर रहा है कि लाइक देख रहा है। इससे ये होता है कि हमने जो भी वर्किंग करनी है हमारे लिए ईजी हो जाती है कि हमने रो ज़ीरो के आगे कौन सा कॉलम पे जाना है, तो हमारे लिए एक लिस्ट के अंदर वर्किंग करना मोस्टली ईजी हो जाता है ताकि हम उसके अंदर फर्दर काम ईजिली कर सकें।
अब अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमने अब जो हमारी इमेज है एक्चुअली, जैसे कि आपको अगर मैं दिखाऊं, ये अभी हमारे करेक्टर्स शो हो रहे हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो हमारे करेक्टर्स हैं, हमारी जो इमेज है इसी के ऊपर शो हो और वो हाईलाइट करें कि लाइक एक्चुअली ये एक्सप्लेन लिखा हुआ है और ये इसका ई है, ये एक्स है, ये पी है, सेम गोज विद द दैट के अंदर टी और एच है। हमने इसको एक्चुअली अपने इमेज के ऊपर कैसे शो करना है, अगर हम उसके लिए जाते हैं तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से कर सकते हैं कि लाइक हम बॉन्डिंग बॉक्सेस बनाते हैं अपने जो होती हैं हमारी इमेजेस होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर हमने बॉन्डिंग बॉक्सेस बनाने हो तो हमारे पास एक्स होता है, वाई है, डब्ल्यू है एंड एच है। लाइक एक्स वाई विड्थ एंड हाइट ऑफ आवर स्पेसिफिक बॉन्डिंग बॉक्स जो भी हमने बनाना हो। एंड हमने देखा कि हमारे पास जो एरे शो हुई थी वो हो रही थी 4 डिफरेंट, सॉरी मैं आपको एक दफ़ा दोबारा वो दिखा दूँ। देखिए एरे हमारे पास शो हो रही है, हमने यहाँ से x, अगर आप देखें हमें x चाहिए, y चाहिए पिक्सेल्स और विड्थ एंड हाइट चाहिए। तो हमारे पास जो ये पिक्सेल्स हैं ये एक्चुअली ये वाले अगर आप देखते हैं ये x y एंड देन विड्थ एंड हाइट ऑफ आवर इमेजेस हैं, ये एक्चुअली हमारा वो करेक्टर है और ये उसकी फर्दर की कौन से पिक्सेल्स है। तो हमने जो बॉन्डिंग बॉक्स बनाने हैं हमने उस पिक्सेल्स के अकॉर्डिंगली बनाने हैं कि ये हमारा करेक्टर का पिक्सल रेंज है, आपने इसके अकॉर्डिंगली इसके राउंड पे वो बॉन्डिंग बॉक्स बनाना है। अब बॉन्डिंग बॉक्स कैसे हमने बनाना है, हमने वो सिंपल एक्स वाई देने हैं हमने, एंड देन हमने इनको स्टोर करना है, बताना है कि एक्स एक्स हमारा कौन सा है, जो कि अगर आप देखते हैं एक्स हमारा कॉलम का 1 है क्योंकि पाइथन 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग की, एंड हमारा जो वाई है वो 2 पे है, देन हमारा जो विड्थ है वो हमारे लिस्ट का 3rd कॉलम है एंड 4th कॉलम इन अदर वर्ड्स, एंड जो हमारा वाई है वो ये है। ओके अगर अब यहाँ पे हमारा एक इशू आता है कि हमारा जो मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो प्रिंट करता है इमेज टू बॉक्सेस वो करता है स्ट्रिंग्स के अंदर। हमें अब यहाँ पे बॉन्डिंग बॉक्स के लिए एक्स वाई डब्ल्यू एच की जो रीडिंग्स चाहिए वो हमें इंटीजर्स में चाहिए होती हैं, तो इसके लिए हम इनको इंटीजर्स में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमें हर एक को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। एक्सप्रेसर टाइप करने में एडिटिंग कर रहे हैं हम। ओके अब हमारी कन्वर्जन हो गई है। अब हमने वो रेक्टेंगल्स एक्चुअली में शो करवाने हैं अपनी इमेजेस के ऊपर। ओके अब रेक्टेंगल हमने शो करना है, तो रेक्टेंगल शो करने के लिए हमारे पास ओपन सीवी का फंक्शन है डॉट रेक्टेंगल के नाम से। सीवी डॉट रेक्टेंगल करते हैं अगर, तो अब हमने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बनाना है अपनी इमेज, किस इमेज के ऊपर रेक्टेंगल बनाना है एंड उसके किस किस बॉन्डिंग बॉक्सेस पे हमने रेक्टेंगल्स बनाने हैं। ओके पहले हम इसको प्रोवाइड करते हैं अपना एक्स एंड वाइज के लाइक हमारा स्टार्टिंग पिक्सेल्स के अकॉर्डिंगली हमारे ये है, एंड देन हमने इसको देनी है कि लाइक हमारे बॉन्डिंग बॉक्सेस की डायगनली जो विड्थ एंड हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। वो हम इसको देते हैं लाइक एक्स प्लस वाई इज लाइक द आपकी हॉरिजॉन्टल विड्थ कितनी है स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्स और हमारी विड्थ मैक्सिमम इतनी है, एंड देन हमने इसको देना होता है हमारे हाइट कितनी है बॉन्डिंग बॉक्स की। हम ये स्पेसिफाई करके देन हमने सिर्फ कलर देना है कि हमने बॉन्डिंग बॉक्स का कलर क्या रखना है, जो आप देखते हैं लाइक अगर हम सिंपल रख देते हैं 00255 एंड देन 1। ओके अगर आपको मैं अब यहाँ पे इमेज शो करूँ तो ये देखें। ओके अच्छा अब ये देखें इसने हमारे बॉन्डिंग बॉक्सेस हर करेक्टर्स के ऊपर ड्रॉ कर दिए हैं, लेकिन देयर सीम्स टू बी ए प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम एक वियर्ड सी प्रॉब्लम है और ये किस वजह से आ रही है आई गेस। अच्छा ठीक है हमारे बॉक्सेस जो ड्रॉ कर दिए हैं इसने लेकिन ये परफेक्टली अलाइंड नहीं है, तो इसका आई गेस अच्छा ठीक है जो हमारा ओपन सीवी का ये पैटर्न का फंक्शन है ये चेंज कर रहा है विड्थ एंड हाइट को। सही इसको फिर हम इस तरह से करते हैं कि ठीक है अच्छा हाँ आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारी हाइट और जो विड्थ हैं वो एक वियर्डली अलाइंड है। फर्स्ट हमारा एक्स है, सेकंड हमारा वाई होना चाहिए था लेकिन ये एक्चुअली हाइट है,
y हमारा थर्ड है और फोर्थ हमारा ओके विड्थ हो गया, सही सही सही। अच्छा, इसको फिर हम यहाँ पे इस तरह से इनिशियलाइज कर देते हैं कि हमारा x यही रहेगा, हमारा जो y है एक्चुअली ये y नहीं है, तो इसको हम चेंज करेंगे हाइट ऑफ आवर इमेज जो कि हमने ऊपर स्टोर की थी, एंड विड्थ ऑफ इमेज ये भी हमने ली थी इमेज डॉट शेप के थ्रू। तो हम इसको सिंपल हाइट में से माइनस कर देते हैं, माइनस y, एंड देन ये इसमें भी x को प्लस करने की हमें ज़रूरत नहीं होगी, फिर ऐसे ही है, एंड इसमें से हमने हाइट माइनस करनी है h में से, ठीक है, सॉरी h इमेज माइनस हाइट। ओके, अब हम ट्राई करते हैं। ओके हाँ, ये देखें, अब आप लोगों ने देखा कि ओके आई डोंट नो इसको क्या इशू, ओके ये हो गया सही। अब देखें हमारा इसने काफ़ी परफेक्टली अलाइन कर दिया कि लाइक ये आपका ई का बॉन्डिंग बॉक्स है, ये एक्स है, ये पी है, एल है। अब ये जो थोड़े बहुत आप देख रहे हैं इसके अंदर एरर्स हल्का फुल्का देख रहे हैं, ये एज सच मैटर नहीं करते क्योंकि ये परफेक्टली अलाइन इसी वजह से नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा एक कस्टम ट्रेंड मॉडल इतना अच्छा नहीं है जो OCR का है, ओपन लाइब्रेरी का, क्योंकि वो इतना परफेक्टली अलाइन नहीं करता। लेकिन स्टिल इट की अगर आप एक्यूरेसी देखें तो इसने मोस्टली काफ़ी अच्छे से हर एक कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली बॉन्डिंग बॉक्स दिया हुआ है। ओके, हम फर्दर अब मूव करते हैं, हमने प्रिंट करवाने के लाइक हर बॉन्डिंग बॉक्स का कैरेक्टर क्या लिखा हुआ है, अब हमने वो प्रिंट कराना है कि लाइक इधर ही अगर ये ई है तो इसके साथ हमें यहाँ पे लिख के बता दें कि लाइक एक्चुअली ये ई लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम मूव करते हैं, ओके इसको हम देते हैं फर्दर, हम चलते हैं साथ में। अब हमने एक्चुअली अब जो रेक्टेंगल तो हमने बना लिया, अब हमने इसको बताने के लिए एक्चुअली हमारे जो इमेज है जो उसको बॉन्डिंग बॉक्स बने हैं उन्हीं के साथ ही हमारा टेक्स्ट भी प्रिंट करे। तो इसके लिए हमारा एक्चुअली सीवी ओपन सीवी का फंक्शन है पुट टेक्स्ट। पुट टेक्स्ट क्या करता है, हमारी इमेज के ऊपर टेक्स्ट राइट कर देता है कि अब कौन सा आपने टेक्स्ट लिखना है। अब पुट टेक्स्ट फंक्शन है, अब इसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी इमेज पास आउट करनी है। अब देन हमने वो टेक्स्ट का अब टेक्स्ट देना है कि हमारा टेक्स्ट क्या प्रिंट करना है। अगर आप दोबारा देखें जस्ट सॉरी, हमारा जो टेक्स्ट है वो फर्स्ट कॉलम के अंदर, मतलब कि जो हमने बॉक्सेस के प्रिंट करवाए थे, जो हमने इमेज टू बॉक्सेस का किया था, इसका फर्स्ट कॉलम विच इज 0th। तो हमने B0 जो सा ये हमेशा जो भी हर करेक्टर का होगा वो हमने प्रिंट करवाना है अपने बॉन्डिंग बॉक्स के साथ। तो इसको अगर हम करते हैं तो B0 एंड देन सेम कि हमने इसको किधर प्रिंट करवाना है किस पिक्सेल्स के ऊपर, तो वो हमारे एज इट इज़ यही रहेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं x h image डॉट y माइनस y, सॉरी, एंड देन हमने इस जगह पे इसको प्रिंट करवाना है एज इट इज़। हमें बॉन्डिंग बॉक्स नहीं देना, हमने सिर्फ उसको पिक्सल देना है कि इस पिक्सल पे जाके वो प्रिंट करवा दो, जो कि हमारा x अकॉर्डिंगली और y बन जाता है। ओके, इसके बाद हमने अब सिंपल फॉन्ट देना है कि हमने कौन सा फॉन्ट रखना है। हम कोई भी फॉन्ट रख लेते हैं इनमें से, चलो कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं फॉर नाउ, एंड देन उसकी फॉन्ट स्केल कितना होना चाहिए फॉर उसकी थ्रेशिंग के लिए, एंड देन फॉन्ट का हम कलर सेट करते हैं। कलर दोबारा हम चलो इस दफ़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं। एंड देन थिकनेस ऑफ आवर फॉन्ट। अब अगर हम अब शो करें तो देखिए अब हमारा यहाँ पे वो शो कर रहा है एक्चुअली कि हर बॉन्डिंग बॉक्स का इटसेल्फ लेटर क्या है, लेकिन ये काफ़ी यहाँ पर बड़ा शो कर रहा है आई गेस, इज इट दैट केस, सही है। चलो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फिर, ये एज इट इज़ ठीक तो है, इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन चलो इसको हम छोटा करते हैं। हमने जो यहाँ पे इसका थ्रेशोल्ड रखा है, सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि वो बिल्कुल ही हमारा बॉन्डिंग बॉक्स के ऊपर प्रिंट हो रहा है। just go with this and then this, तो here we go। ओके, अब देखिए थोड़ा सा हमने इसको नीचे डिस्प्लेस कर दिया ताकि वो हमारे लिए इजी हो फॉर द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर इटसेल्फ एंड द इमेज के अंदर जो कैरेक्टर है उसके लिए। ओके ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम मूव करते हैं अब
और ऐसा मुझे बताइएगा कि अगर ये जूम और जूम लेवल ठीक है कि नहीं, ताकि फर्दर हम फिर कंटिन्यू करें। आई थिंक थोड़ा सा जूम कर लें हम तो बेहतर श्योर, है। मैं इसको भी कर लूँ। ओके अच्छा, अभी हमने देखा कि हमने ये सारा प्रिंट करवाया था इमेज टू बॉक्सेस। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हमने कैरेक्टर्स तो किए, हम सिंपल वर्ड्स को इटसेल्फ प्रिंट करके उनको डिटेक्ट करके करें। तो ये हमारा एक सिंपल ओसीआर की एप्लीकेशन थी हमने जो देखी। सेम अब इस तरह से हम इसकी फर्दर एप्लीकेशन देखते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, हमने वर्ड्स के अकॉर्डिंगली इस वक्त प्रिंट करवाना है। पहले हम लाइक कर रहे थे कैरेक्टर्स को प्रिंट कर रहे थे, अब सिंपल वर्ड्स को प्रिंट करते हैं कि लाइक वो किस तरह से होते हैं। अगर आप उसके लिए करते हैं तो हम ऐसा करते हैं, इसको करते हैं कॉपी एज इट इज, सॉरी, एंड इसको हम कर देते हैं कमेंट। ऑलराइट, हम अच्छा उसके लिए हमारा अब जो डेटा के अकॉर्डिंगली हमने राइट करना है, तो हम उसका हमारा पाइथन का फंक्शन है इमेज टू डेटा। सेम सारा कुछ वही रहेगा, हमने सिर्फ इमेज टू डेटा करना है। एंड इसके लिए अब हम इसको करके अब चेक करते हैं। ओके हियर वी गो। ओके अच्छा, यहाँ पे हमारे एरर आ रहा है, जस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ऑलराइट, हम एरर को भी देख लेते हैं। पहले हम ऐसा करते हैं, देखते हैं हमारे बॉक्सेस प्रिंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ओके अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हम पहले जो कर रहे थे इमेज टू स्ट्रिंग वाला या इमेज टू डेटा, सॉरी इमेज नंबर्स वाला, तो उसमें हमारे सिर्फ 5 कॉलम्स है टोटल। लाइक 4 हमारे पिक्सेल्स के थे, एक हमारा 6 कॉलम्स है, 4 हमारे पिक्सेल्स के थे, एक हमारा कैरेक्टर इटसेल्फ का था, और प्लस एक हमारा वैसे लास्ट कॉलम जो होता था जिसमें कोई ऐसा वैल्यू नहीं होती, वो था हमारा। लेकिन अब इमेज टू डेटा राइट के लिए जो हम करते हैं, जो हमने इस स्पेसिफिक एग्जांपल जो हम करने लगे हैं, उसमें देखेंगे हमारे पास नंबर्स ऑफ कॉलम है। लाइक पहला हमारे पास लेवल है, देन पेज नंबर है, देन ब्लॉक नंबर है, पैराग्राफ नंबर है, लाइन नंबर है। आई गेस ये पैराग्राफ नंबर है, मुझे एग्जैक्ट अगर याद हो थोड़ा सा। तो ये हमारा वर्ड नंबर है, फिर लेफ्ट है, फिर टॉप है, एंड देन विड्थ, हाइट एंड कॉन्फ़िगरेशन, एंड देन टेक्स्ट। ये एक्चुअली कितने कॉलम्स बन जाते हैं बोला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉलम बन जाता है टोटल। सही। अच्छा, इसीलिए हमारा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ रहा था, क्योंकि हम जो कर रहे थे वो ठीक नहीं थे कर रहे। सही। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आपके, लाइक हमारे जो पहले 4 कॉलम हैं इटसेल्फ, उनमें तो कोई डाटा नहीं है। और फर्स्ट कॉलम हमारा इटसेल्फ जो सा फर्स्ट रो है हमारी, वो तो वैसे ही हेडर है, लाइक बता रही है कि हमारे कॉलम हेडर्स क्या है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट 4 हैं वो इटसेल्फ हमें कुछ नहीं बता रही। हमारा जो डाटा स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 6 वाली रो से जाके। लाइक पहले हमारा हेडर है, फिर हमारी 4th रोज में कुछ भी नहीं है इटसेल्फ, एंड बाद में हेडर है। अब इसमें देखेंगे जो हमारे तब प्रिंट हो रहे थे एक्स वाइज कॉलम्स, वो हमारे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पे हो रहे थे, लाइक सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम्स पे। लेकिन इसमें हमारे पास यहाँ पर हो रहे हैं, अगर आप देखें, देखें टॉप एंड विड्थ है, हाइट है, एंड लेफ्ट टॉप विड्थ एंड हाइट को अगर आप देखते हैं तो वो ये पर्टिकुलर कॉलम्स हैं। एंड देन एक कॉन्फ़िगरेशन है इटसेल्फ, इसको लाइक देयर इज, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एंड देन हमारा इटसेल्फ टेक्स्ट है कि वो एक्चुअली क्या है यहाँ पे, विच इज एक्सप्लेन है दैट स्टफ, एंड ये है। तो जिनके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे, अब जिनके अंदर हमारा टेक्स्ट है, जिनकी हमें ज़रूरत है, वो इटसेल्फ 12 कॉलम्स के ऊपर है। और जो बाकी हमारा सारा डेटा है, जो भी मेटा डेटा होगा हमारे इमेज का जो भी है या फंक्शन का, वो टोटल 11 कॉलम्स। अगर आप ये चेक करें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी एक्सक्यूज मी। ओके कितने थे? अच्छा सॉरी, दोबारा हम करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉलम्स हैं। ओके, और अगर हम इसके चेक करते हैं तो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 कॉलम्स हैं। जिसमें हमारा डाटा है उसके एक्चुअली 12 कॉलम्स हैं। तो हमने अब इसके अकॉर्डिंगली हमने चलना है, इसलिए हमारा एरर आ रहा था कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है। अब इसको हमने अगर ठीक करना है तो हम इसको कैसे करेंगे? ऑलराइट, इसके लिए हम एक्चुअली करते हैं कि हम अपना काउंटर लगा देते हैं, ताकि हमारा जो सा है वो एरेस बिल्कुल ठीक जाए।
तो अब इसके लिए अगर देखते हैं, हम काउंटर लगाने के लिए हम एन्यूमरेट यूज़ करते हैं एक्चुअली, जिससे हमारा लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो पहला कॉलम मैंने बताया कि पहली रो की हमें सिर्फ ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको भी मिस कर सकते हैं। तो हम एक्चुअली एन्यूमरेट अगर यूज़ करें, राइट, ओके अच्छा ये बॉक्सेस का आ गया। Here we go, enumerate, और ये हमें दो चीज़ें रिटर्न करता है, एक तो हमारा इटसेल्फ जो हमें चाहिए, प्लस ये काउंटर रिटर्न करता है कि लाइक आप एक्स कौन सी रो पे हैं इटसेल्फ। तो हमें जैसे मैंने आपको कहा कि हमें फर्स्ट रो की इटसेल्फ ज़रूरत नहीं है, वो कॉलम हेडर है हमारा, तो हम क्या करते हैं, हम उसको मिस कर देते हैं और फॉर लूप यहाँ पे लगाते हैं, जो कि एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 वाली है। लाइक हमारा जब भी एक्स 0 ना हो तो हम तब फर्दर प्रोसेसिंग करें, तो हम इसको यहाँ पे आगे लूप में ले जाते हैं ताकि इटसेल्फ हमें कोई इशू ना हो। ऑलराइट, अगर अब चेक करते हैं, इसको भी हम फिलहाल दोबारा कर लेते हैं, एंड देन वी गो अगेन। राइट, हमारा सॉरी, ओके अच्छा, अब देखें हमने जो किया वो था, अभी भी हमारा यहाँ पे स्प्लिटिंग में इशू आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम स्प्लिटिंग को इटसेल्फ रहने देते हैं, कहते हैं ओके लेट इट डिसाइड फॉर इटसेल्फ। क्या ठीक रहेगा, हम सिंपल वैसे चेक करते हैं पहले एक दफ़ा। ओके आप ये देखें, अब हमारा सही आ रहा है, अब हमारी वो लिस्ट बन गई है एक्चुअली में कि हमें क्या कौन कौन सा कॉलम चाहिए, लाइक हमारे जैसे हम पहले कर रहे थे उस तरह से हमारी अब ये लिस्ट बन गई है। तो इसको अब हम करते हैं फर्दर अपनी प्रोसेसिंग कि अब अच्छा मैंने कहा आपको कि अब हमारे पास सिर्फ हमें वो कॉलम्स चाहिए जिनमें टोटल वो रोज चाहिए जिनके टोटल कॉलम्स लेफ्ट 12 है, क्योंकि हमारा डेटा ही सिर्फ उन्हीं के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, हम सारी जिनके 11 है उनको हम मिस करवा देते हैं, लाइक हम उनको कहते हैं कि लाइक वी डोंट नीड दैम। इसके लिए व्हाट शुड वी डू, हम इसके लिए करते हैं ओके हाँ, इसके लिए हम इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ लेंथ ऑफ बी डबल इक्वल्स टू 12, अगर कॉलम्स की लेंथ 12 हो देन वी शुड डू दिस, जो भी हमने फर्दर प्रोसेसिंग करनी है। ओके अच्छा, इसको हम देखते हैं। अच्छा हमने बताया कि हमारे जो कॉलम रीडिंग्स हैं वो उस वक्त डिफरेंट थी, अब उसके अकॉर्डिंगली अगर हम मैच करें, मैं बल्कि एक दफ़ा दोबारा इसको ये कर लेता हूँ, तो इंडेंटेशन एरर, लेट मी चेक, इसका ऐसे अच्छा सॉरी, इसको ऐसे करूँ। ऑलराइट, अच्छा आपने देखा कि हमारे जो यहाँ पे एक्चुअली वैल्यूज़ हैं एक्स वाई एंड डब्ल्यू एंड एच की, वो एक्चुअली हमारे पास किस किस कॉलम्स में आ रही हैं, इन कॉलम्स में आ रही हैं, ये वाले कॉलम्स, ये कौन से बन रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th, 6 7 8 और 9th कॉलम्स में एक्चुअली हमारी रेटिंग्स आ रही हैं, जो कि पहले हमारी आ रही थी 1 2 3 और 4th में। तो इस दफ़ा अब हमने इनको इसके अकॉर्डिंगली चेंज करना है, तो अब हमने यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं हमने इसको इसके अकॉर्डिंगली चेंज करना है। एंड हमारे पास पहला जो आ रहा था वो 6 में आ रहा था, देन वी आर इन 7th, देन वी आर इन 8th, and then we are in 9th. All right. Okay. अब अगर हम बॉन्डिंग बॉक्सेस को चेक करें तो हमारा एरर भी नहीं आना चाहिए, बस प्रॉब्ली, सॉरी एक सेकंड मैं अब रन करता हूँ। ऑलराइट, ये देखिए, अच्छा अभी ये वेट स्टफ शो कर रहा है दोबारा। ऑलराइट, इसको सॉरी, अच्छा इसको हम देखते हैं, ये दोबारा वही हाइट का हमारा इशू आ रहा है आई गेस इसमें, ठीक है अच्छा। अब पहले हमने जो फंक्शन लगाया था ना, हमारा जो ऊपर वाला फंक्शन था image to boxes वाला, ये एक्चुअली हाइट और जो हमारा विड्थ थी उसको रिप्लेस कर रहा था, जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ा था। लेकिन जो इमेज टू डेटा वाला है ये एक्चुअली उसी तरह से कर रहा है जो हमने ओरिजिनल रखा था, कि हाइट और विड्थ जो एक्चुअली शो कर रहा है उन्हीं डिस्प्लेसमेंट्स पे है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे दोबारा वही कर लेते हैं जो हमने पहले रखा था, एक्स एंड वाई था, इट इज़ डब्ल्यू प्लस एक्स जो हमारी विड्थ थी, एंड ये हमारा हाइट प्लस वाई हो रहा था। सेम हमें फिर यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, एक सेकंड हम देख लेते हैं।
ओके हाँ ठीक है, इस दफ़ा देखिए हमारे बाउंडिंग बॉक्सेस आर मच बेटर देन कि कोई और हमें कोई इशू करना पड़ता। तो अब हम इसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, ताकि अगर हम डिजिट्स को सिंपल एज इट इज शो करवाना हो तो हमने कैसे करना है। ओके सही है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखा एक इशू हमारे पास जो आ रहा था, अगर मैं आपको दिखाऊं, जो ये इशू था ये एक्चुअली किस वजह से आ रहा था। देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या क्या प्रिंट हो रहा है, 5 5 5 एंड 5। अब देखें, अब जो जो हमारा कॉलम हमें चाहिए था उसके स्टार्टिंग पे 5 5 5 एंड 5 था। एक्चुअली ये हमारा डाटा प्रिंट नहीं कर रहा, हमारा डाटा था 12th कॉलम के अंदर। अगर आपने ये देखा, हमें जहाँ पुट टेक्स्ट किया हुआ था image B0 ले रहे थे हम, ये B0 एक्चुअली हमें हमारा डाटा नहीं दे रहा जो हमारा टेक्स्ट था। तो हमने ये चेंज करना है यहाँ पे, ये अब हमारे 12th कॉलम के अंदर है। तो उसके लिए अब हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, और वो हमारा बनता है 11th। अगर 0 से स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स बिगिन नाउ एंड ये ओके या वी गॉट इट। देखिए अब हमारा वो एक्चुअली टेक्स्ट प्रिंट कर रहा है हर एक का, और सिर्फ ये अगर देखते हैं तो इसने इसको इन्वर्ट किया हुआ है। ये किस लिए किया है, ओके अच्छा इसको हम देखते हैं इसलिए किस लिए किया, फॉर इन्वर्टिंग में से। ओके सही है। अच्छा इसको हम देखते हैं। अच्छा मैंने आपको कहा कि अब हमने सिर्फ डिजिट्स जो से हमारे लिखे हुए हैं न्यूमेरिक्स में, हमने उनको डिटेक्ट करना है, क्योंकि हमने प्रॉपर सारा डिटेक्ट कर लिया था। इसके लिए अब हम क्या करते हैं, हमारा जो एक पाइथन का फंक्शन है, कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, हम वो यहाँ पे हम फर्दर प्रोसेस करवा सकते हैं कि यार एक्चुअली हमें ये प्रोसेसिंग्स जो हैं इस कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंगली चाहिए। तो हम यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं, और ये अगर आप लोगों को मैं बताता हूँ, इसको हम करते हैं -OEM 3-PSM 6 आउटपुट। अच्छा ये ना समझना कि लाइक मुझे इसका पता है कैसे होता है, लेकिन ये मुझे खुद आज तक याद नहीं हुआ, ये हमेशा मुझे देखना पड़ता है। तो इसको मैं साथ देख रहा था कि लाइक ये एक्चुअली क्या होता था। अच्छा अभी एक्चुअली क्या करता है कि हमारा ये रीडिंग जो होती है ये एक्चुअली पाइथन के इंजन्स होते हैं। आप लोगों ने अगर इसकी डॉक्यूमेंट्री अगर नहीं है तो हम इसकी डॉक्यूमेंट्री भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस वक्त टाइम भी शॉर्ट हो रहा है, तो इसलिए हम डॉक्यूमेंट्री फॉर नाउ हम मिस करते हैं। लेकिन एक्चुअली इंजन्स होते हैं ऑपरेटिंग के, हमारे पाइथन की लाइफ में किस इंजन्स पे करना है और आउटपुट क्या करनी है। अब आउटपुट बेस में हम सिर्फ दे रहे हैं डिजिट्स, कि हम कह रहे हैं जो जो अब पाइटेजेक्ट डिटेक्ट कर रहा है करेक्टर्स में, उसमें जो डिजिट्स हैं सिर्फ हमने वो आउटपुट करने हैं। और इसको हम प्रोवाइड करते हैं फर्दर, इसको हम इधर दे देते हैं, हमारा जो जहाँ पे पाइटेजेक्ट का हमने इमेज टू डेटा कॉल किया है, इसके अंदर हमारा कॉन्फिग का पैरामीटर है, हम वहाँ पे अगर दे दें तो ये एक्चुअली हमारे सिर्फ डिजिट्स को ही रिकग्नाइज करके सिर्फ आउटपुट करेगा। तो अब हम चेक करते हैं, ऑल राइट ये देखें, ओके सी सिर्फ हमारा डिजिट्स वाले पे उसने बाउंडिंग बॉक्स ड्रॉ किया एंड उसने सिर्फ डिजिट्स यहाँ पे डिस्प्लेस किए हैं। ओके अब ये जो ऊपर जा रहा है एक्चुअली ये इशू आ रहा है हमारा, क्योंकि हमारी इमेज जो है नीचे से इटसेल्फ खत्म हो रही है, नीचे से उसके लाइक हो नहीं रहा, तो वो उसको ऊपर डिस्प्लेस कर रहा है। अगर हम इसको चेंज करें -15 कर देते हैं जस्ट फॉर नाउ उसकी डिस्प्लेसमेंट चेक करने के लिए, तो व्हाट डज इट शो। अच्छा वो और ऊपर चला गया, हम +35 करते हैं जस्ट टू चेक, ऑलराइट ओके ये देखिए काफ़ी नीचे आया, लेकिन हम इसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं अपनी स्टेट लाइक हमें कहाँ पे करके चाहिए, तो हम इसको 35 भी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा नंबर इंक्रीज करेंगे तो ये एक्चुअली इसी के साथ आ जाएगा। तो ये देखा हमने कि लाइक हमें अगर सिर्फ डिजिट्स को प्रिंट करना है तो हम वो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक किया कि हमने सिर्फ अगर जो जो हमें रीड कर रहा है हमारी इमेज के ऊपर जो जो करेक्टर लिखा हुआ है उन्हीं को रीड करो और वो सारा प्रिंट कर दो। और यहाँ पे हमने देखा कि हमने सिर्फ आउटपुट बेस में सिर्फ डिजिट्स चाहिए, तो हम वो कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली हमारा OCR का प्रोजेक्ट था। लाइक आपने ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन करनी हो तो हम किस तरह से बेसिकली करते हैं ओपन सीवी के साथ, और हम पाइथन यूज़ करते हैं OCR के लिए। ऐसे ओपन सीवी में इटसेल्फ OCR नहीं होती। तो OCR का प्रोजेक्ट तो हमारा हो गया, एंड वी आर शॉर्ट ऑन टाइम एज वेल।
सो हम सेकंड प्रोजेक्ट का उस्मान आप मुझे बता दें लाइक शुड वी गो विद सेकंड प्रोजेक्ट और नॉट? आई थिंक पहले अटेंडेंस कर लेते हैं, देन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडियंस, अगर ऑडियंस चाह रही है सेकंड प्रोजेक्ट भी हो हमारा नंबर प्लेट सिस्टम को, तो हम वो कर लेते हैं। श्योर। ऑडियंस आप लोग अगर चाह रहे हैं तो हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो यहीं ख़त्म करते हैं। आर यू विलिंग टू कंटिन्यू? क्या आप सेकंड प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं? इन्हें कहने लाइक ये हैंड रेज कर लें जो लाइक हम बोर्ड्स की बेसिस पे देख लेते हैं कि सेकंड प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन वो एक सेकंड जो प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं है वैसे पहले छोटा सा ही है, उस पर लाइक हमारे हार्डली कोई 15 to 20 मिनट्स मैक्स लग सकते हैं इफ यू गाइस आर विलिंग कि लाइक नंबर प्लेट डिटेक्शन अगर करनी हो तो हम एग्जैक्टली आप लोग इसमें ये मैंने जो देखा ना अभी तक, आप लोग अगर ये प्रोजेक्ट कर लेते हैं ऑप्टिकल वाला, तो आपका फेस डिटेक्शन में भी आपका ये काम आ सकता है। लाइक फेसबुक जो फेस डिटेक्शन उसका एल्गोरिदम है, आप वो भी डिज़ाइन फ्यूचर में कर सकते हैं आप इससे। एग्जैक्टली। आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा किस तरह करते हैं। और लाइक आप डॉक्यूमेंट्स देख लें, अगर जिस तरह आपके कोई स्कैन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर हम वो देखें तो इस प्रोजेक्ट के बाद आप उनको उन स्कैन डॉक्यूमेंट्स को एज ए टेक्स्ट फाइल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप उसको वर्ड डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करके अपनी बुक बना सकते हैं एज कम्पेयर टू लाइक जो हम स्कैन प्रोजेक्ट का स्कोप डिस्कस कर रहे थे वो हम बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल के अकॉर्डिंगली कर रहे थे, लेकिन हम जैसे देखा कि हमने कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइज किए, हम उनको सेव भी कर सकते हैं स्कैन करके, हम फर्दर कर सकते हैं अगर हम इसमें अगर नंबर प्लेट का भी प्रोजेक्ट करते हैं तो हम उसको भी कर सकते हैं कि लाइक हम सेव करके उसके ऊपर ही प्रोसेसिंग कर सकते हैं, या हमने उसको टेक्स्ट में किसी फॉर्म में सेव करना होता कि हम उस तरह से कर लें। वो फर्दर एप्लीकेशंस हैं वो फिर थोड़ा सा एडवांस हो जाती हैं, वो नेक्स्ट टाइम पे कभी इंशाल्लाह हम उनको भी फोकस कर सकते हैं। एग्जैक्टली अगर इसी ऑप्टिकल OCR को हम अगर फर्दर कंटिन्यू करें तो हम लोग इसको एज अ एप्लीकेशन बना के अपने लोकल वेंडर्स को बेच सकते हैं। लाइक बाज़ारों में जो कंप्यूटर की शॉप्स होती है जहाँ वो लोग लाइक पेपर का टेक्स्ट वो चेंज करते हैं, हैंड रिटन उसके पैसे लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एप्लीकेशन बना के दे सकते हैं जिसमें वो लोग पिक्चर लेके खुद ही उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उससे उनका टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। इसके अलावा इसको वैसे अगर हमारी एप्लीकेशंस यूज होती हैं, अगर आप देखें तो हमारी सिक्योरिटी के पर्पसेस के लिए हमारी OCR की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, तो हम Exactly. उसके उधर भी हम यूज़ करते हैं कि लाइक हमारा कैमरास लगे होते हैं हमारे बाय क्रॉसेस पे, इस तरह की चीज़ों पे हम वहाँ से चीज़ें डिटेक्ट करके रीड कर रहे होते हैं, अगर आपने सिक्योरिटी की चीज़ें चेक की हो तो उधर भी हमारा हो रहा है। तो आई गेस इतने लोग विलिंग नहीं है कि हम सेकंड प्रोजेक्ट करें, दैट्स ठीक है। फाइन। हम लोग अटेंडेंस का लिंक शेयर कर देते हैं और फीडबैक का भी लिंक साथ ही, आप लोग अपना काइंडली ज़रूर फीडबैक भी शेयर कर दीजिएगा। मैं ज़रा आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो आप लोग जाके अटेंडेंस लगा सकते हैं और साथ अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अटेंडेंस की बेसिस पर ही आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेंगे इसी लिंक पे, इसी मेल पर जो आप लोग मेल एंटर करेंगे अटेंडेंस फॉर्म में। तो 5 मिनट्स में हम लोग अपना सेशन ख़त्म करते हैं। किसी को क्वेश्चन तो वो माइक ओपन करके पूछ सकता है रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट और द प्रीवियस वन। Yes, do you have a question? K19ME28. रिकॉर्डिंग्स और रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, जो कोड है, वो आप लोगों के साथ मेल पे शेयर कर दीजिएगा आज। आई थिंक एंड करते हैं इसको। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द 2 days event on getting started with computer vision and using OpenCV.
एंड इंशाल्लाह हम लोग इस तरह के और इवेंट्स रखते रहेंगे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पर, लाइक कंप्यूटर विजन, एआई, मशीन लर्निंग, और नॉन टेक्निकल इवेंट टॉपिक्स पर भी हम लोग फ्यूचर में इंशाल्लाह रखेंगे इवेंट्स। तो काइंडली ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़। All right, thank you everyone. Thank you, Usman, you as well for hosting Thanks. such a great workshop. And thank you. Everyone. Have a nice day. Bye bye. Thank you, everyone. Thank you so much.